old tweet of Shashi Tharoor has come to the fore. How do you see this? See, this link between George Soros and Congress leadership is not an allegation made by BJP. It is a report before the public domain, and everybody is aware of that. And Rahul Gandhi's conduct and all his activities are very well known to the people. So the matter is of serious nature, and it's not a matter related to or concerning to BJP only. It is a matter concerning the entire nation. When it comes to national interests, we all will have to stand together and united. So George Soros has openly declared a war against India and Indian government. He wants to destroy Indian economy. It is a matter of grave concern for every citizen of India. So George Soros and his links with the Congress leadership is not confined or concerned only to BJP. On the other hand, what I want to say is, whatever may be the issues available, we should not disrupt the parliamentary proceedings. Now, many MPs have come to me, including MPs from Samajwadi Party, TMC, and many MPs from Congress Party also. In fact, the entire Congress Party in Rajya Sabha are looking for debate and discussion in the House. It is only Rahul Gandhi who doesn't want to take part in the parliamentary proceeding. Probably Rahul Gandhi doesn't believe in parliamentary democracy. But all other MPs are very interested to have debates and discussions in the House. Every MP is concerned about their constituency and the issues related to their constituencies. Rahul Gandhi doesn't have to bother about any issues. He doesn't have any feelings. He doesn't have any understanding about the plight of the people. So it doesn't matter to him. But the other MPs are concerned. So whenever the Congress MPs have come to me, I've told them, please convince your leader. Otherwise, government is not a weak government. We have numbers. The government business can be passed through. To serve the nation, we have to make parliament function. And if there are important businesses, bills, which are required to be passed, we will do it because we have majority. The only thing we are not doing forcefully right now is because we want a proper discussion on those issues. Without discussion, if a bill is passed, it doesn't look nice. So we are looking for the inputs from all the members of parliament. Otherwise, the opposition cannot block the functioning of the parliament. Whenever it comes to passing of the bills, the government can do it. लेने के जिसमें एक शशि थरूर का ट्वीट भी सामने आया है और सोनिया गांधी पे भी एलिगेशन है कि वो इंडिया को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं। देखिए, जॉर्ज सोरोस का संबंध कांग्रेस के नेतृत्व से जो भी है वो भारतीय जनता पार्टी का ही मामला नहीं है, ये मामला देश का है। और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व और जॉर्ज सोरोस का संबंध सबको मालूम है। और जॉर्ज सोरोस ने खुलेआम भारत को चेतावनी दिया है भारत सरकार के खिलाफ, और भारत के अर्थव्यवस्था को नष्ट करने के लिए उन्होंने $1 बिलियन का भी आवंटन किया गया है। ये तो सबको मालूम है, उन्होंने ओपन डिक्लेयर किया है। और उस जॉर्ज सोरोस के साथ कांग्रेस के नेतृत्व का संबंध भी सबको मालूम है। ये विषय बहुत गंभीर है। ये भारतीय जनता पार्टी का ही मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरा देश का मुद्दा है। इसमें सारे पार्टियों को एकजुट होकर के देश के खिलाफ जो भी आवाज उठाते हैं उसको लड़ना चाहिए। इसलिए ये सरकार विपक्ष का मामला नहीं है, जॉर्ज सोरोस का मामला देश का इशू है और पूरा देश एकजुट रहना चाहिए। जहां तक पार्लियामेंट चलाने का ये जो सिलसिला है, ये तो पार्लियामेंट तो चलना शुरू हो गया था। तो कांग्रेस पार्टी ने सडनली ये जैकेट पहन करके अदानी का इशू को, जो यूएस कोर्ट का मामला है, उसको लेकर के यहाँ तमाशा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कई सांसद और राज्यसभा में तो कांग्रेस के पूरे सांसद चाहते हैं कि हाउस चले। समाजवादी के, टीएमसी के, डीएम के कई
पार्टीज के एमपीज मुझे मिले हैं, सबने कहा कि हाउस चलाना चाहता है। तो मैंने उनको कहा है कि हाउस चलाना चाहता है तो राहुल गांधी को समझाओ। अब राहुल गांधी को गरीबों का मसला और आम लोगों का जो भी इशू है उसका कोई मतलब नहीं है, उनको समझ नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी तो लोगों का इशू से कोई लेना देना नहीं है। उनका अपना एक महत्वाकांक्षा है, अपना एक स्टाइल है, नाटकीय तरीके से कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो उससे प्रभावित होकर के संसद का सत्र का जो कामकाज में रुकावट डालना ठीक नहीं है। देखिए, मैं एक बात साफ साफ बताना चाहता हूं, अगर देश को सेवा करने के लिए बिल पारित करना आवश्यकता है तो हम पारित तो करेंगे ही। हमारे पास संख्या है, सरकार के पास राज्यसभा लोकसभा में अपने एनडीए का पूरा संख्या है, तो बिल तो हम पारित कर सकते हैं। लेकिन हम अभी जबरदस्ती इसलिए पारित नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि उसका चर्चा हो। सारे सांसद अपने मत रखने का अधिकार रखता है, तो सब एमपीज का डिबेट और डिस्कशन में पार्टिसिपेशन होने से संसद का गरिमा को भी रखता है और साथ साथ में बिल और जो भी बिजनेस है उसमें भी फायदा होता है। हम चाहते हैं कि सारा एमपीज अपने अपने मत रखे हैं सदन में। तो मैंने सबको कहा है, खास करके जो उनके कांग्रेस और कुछ दलों को मैंने कहा है कि आप लोग चर्चा चाहते हैं तो राहुल गांधी का समझाओ। वो समझते नहीं है, तो राहुल गांधी के चपेट में कांग्रेस लोग आ गए हैं तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन नुकसान तो देखिए, ये जो अपोजिशन एमपी से उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि वो अपना बात नहीं रख पा रहा है। सरकार तो चाहेगा तो बिजनेस तो पारित कर ही लेंगे, हमारे पास मेजोरिटी है। हम इसलिए बुलडोज नहीं कर रहे क्योंकि हम चाहते हैं कि चर्चा हो। तो ये समझना चाहिए, हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले। मैं फिर से अपील करता हूं कि कांग्रेस पार्टी के जो एमपीज हैं जो चर्चा चाहते हैं, हाउस में डिबेट डिस्कशन में हिस्सा लेने चाहते हैं, सब लोग जाके राहुल गांधी को समझाए कि ये बचकना, ये नाटकीय जो हर दिन वो करते रहते हैं वो बंद करें और फिर हाउस में आकर के हाउस चलाने में मदद करें।